soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. I welcome you all to this morning service. In the beginning, let us join in the opening hymn. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे। हम सेक्शन 4 मिलकर कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं। आप ही हे यीशु मसीह
पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। 20th Sunday after Pentecost, ईद पेंतिकुस्त के बाद 20वां इतवार, आइए हम खुदावंद की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं। Let us pray. Almighty and everlasting God, you are always more ready to hear than we to pray. Give more than we either desire or deserve. Pour down upon us the abundance of your mercy, forgiving us those things of which our conscience is afraid, and giving us those good things which we are not worthy to ask, except through the merits and mediation of Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. We shall have the Bible readings now. हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। The Old Testament reading is taken from the book of Isaiah, chapter 42, verses 1 to 9. Isaiah chapter 42, verses 1 to 9. The Lord says, "Here is my servant, whom I strengthen, the one I have chosen, with whom I am pleased. I have filled him with my spirit, and he will bring justice to every nation. He will not shout or raise his voice, or make loud speeches in the streets. He will not break off a bent reed, or put out a flickering lamp. He will bring lasting justice to all. He will not lose hope or courage. He will establish justice on earth. Distant lands eagerly wait for his teaching. God created the heavens and stretched them out. He fashioned the earth and all that lives there. He gave life and breath to all its people. And now the Lord God says to his servant, I, the Lord, have called you and given you power to see that justice is done on earth. Through you I will make a covenant with all peoples. Through you I will bring light to the nations. You will open the eyes of the blind and set free those who sit in dark prisons. I alone am the Lord your God. No other God may share my glory. I will not let idols share my praise. The things I predicted have now come true. Now I will tell you of new things even before they begin to happen. This is the word of the Lord. आज का दूसरा पाठ लिया गया है भजन संहिता उसका 146 5 से लेकर 10 तक। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करेगा। यह की स्तुति करो। परमेश्वर का वचन है। A reading from the second epistle to Timothy, chapter 4, verses 6 to 11 and verses 16 to 18. Second epistle to Timothy, chapter 4, verses 6 to 11 and verses 16 to 18. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord,
the righteous judge, will award me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Do your best to come to me quickly, for Demas, because he loved this world, has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, and Titus to Dalmatia. Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, because he is helpful to me in my ministry. At my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be only held against them, but the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me the message might be fully proclaimed, and all the Gentiles might hear it. And I was delivered from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil attack, and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. This is the word of the Lord. Thanks be to God. आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है संत लूका के सुसमाचार में से उसका 10 अध्याय 1 आयत से 9 आयत तक. Gospel according to Saint Luke, chapter 10, verses 1 to 9. जब इंजील का पाठ पढ़ा जाता है तो मेहरबानी से हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. यहां इस प्रकार से लिखा गया है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा. उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे. जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो. जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो. यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा. उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए. घर घर ना फिरना. जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ. वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है. ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है. आए मसीह तेरी तमजीद हो. खुदावन की बुलाहट कोई करियर नहीं है, बल्कि वो हक ताला के साथ एक अहद है. खुदावन अपने खादिमों को मुकर्रर करता है, मखसूस करता है और ख़ास काम के लिए उन्हें भेजता है. खुदावन के खादिम आम तौर पर बहुत मामूली लोग होते हैं, मगर खुदा उन्हें रूहें बचाने के काम के लिए इस्तेमाल करता है. Though a true minister never seeks self-glory, but it is a blessed thing to honor the servant of God, because by doing that we share in the ministry, in their ministries and please God. आज पेंटेकोस्ट के बाद 20वां इतवार है और आज का मुद्दा है लूका रसूल की जिंदगी के लिए शुक्रगुजारी. लूका जो कि पौलुस के बहुत ईमानदार हमसफर रहे और इंजील के लिखने वाले. Thanksgiving for Luke, a faithful companion of Paul and the writer of gospel.
लूका रसूल पौलुस के बहुत करीबी थे और इस वजह से वो बाकी शागिर्दों के साथ भी संपर्क में थे और उन्होंने उन शागिर्दों को कलाम सुनाते हुए, तालीम देते हुए और मुआवजे करते हुए देखा था, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे काफ़ी और वैद्य थे, डॉक्टर थे। तो उन्होंने जो इंजील लिखी वो थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर और वो कलाम को बहुत गहराई से डिटेल में खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी और खिदमत के बारे में बताते हैं इंजील में। ही ऑल्सो रिकॉर्ड्स द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्ली चर्च की एक हिस्ट्री देते हैं कि किस तरह से कलीसिया की स्थापना हुई, कैसे कैसे कलीसिया ने जद्दोजहद करी और किस तरह से कलीसिया बढ़ती गई। अगर प्रेरितों के काम जो किताब उन्होंने लिखी है उसको हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इंजील के अंदर कलाम में लूका रसूल कहीं पर कलाम नहीं सुनाते, कहीं पर मौजज़े नहीं करते, मगर जो उन्होंने लेखनी लिखी है, द लिटरेचर दैट इज रिटन इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द चर्च। Luke has great respect for the servants of God, and that is the reason he served Paul as his personal physician during his missionary journeys. In this passage under consideration, Luke records Jesus' words wherein he is sending his disciples on missionary work, or one may call it apprenticeship. Legends hold that Luke was one of the 70. खुदाबंद अपने लोगों को मखसूस करता है, मुकर्रर करता है, तालीम देता है और उनको भेजता है ताकि वो खुदा के कहे काम को कर सके। इन द मिशन बिलीवर्स आर सपोज्ड टू जॉइन देम, शेयर द मिशन एंड इवन द ब्लेसिंग्स दैट फॉलो। इससे पहले कलाम में आगे जाए, आइए हम दुआ करें। हमारे रूहों और दिलों को खोल दे आए मुबारक खुदाबंद, ताकि आपका कलाम हमसे रूबरू हो, खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ बाइबल का हिस्सा निकाल कर रखें, लूका की इंजील उसका 10वां बाब। पहली चीज़ जो हम देखते हैं 1 से 3 आयत के अंदर और चौथी आयत के दूसरे हिस्से में, फर्स्ट थिंग दैट वी फाइंड हियर इज गॉड अपॉइंट्स एंड सेंड्स हिज मिनिस्टर। खुदावंद अपने लोगों को मुकर्रर करता है और भेजता है। एक बार किसी परिवार में मैं था, वहां पर 3 लड़के थे। मैं पूछ रहा था परिवार से कि बच्चे क्या करेंगे, तो परिवार के मुखिया ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया कि पादरी साहब, एक तो पहला वाला बहुत पढ़ाई लिखाई में तेज है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको IAS की कोचिंग कराई जाए। जो दूसरा है वो थोड़ा कम है, उसको BEd कराया जाए। मगर ये तीसरा है, ये थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, कुछ कर नहीं पा रहा, हम सोच रहे हैं इसको पादरी बना दें। अजीजों, हम जिस तरह की क्वालिटी भेजेंगे, जैसे हम सोच रखेंगे, वैसा ही हम रिजल्ट की भी उम्मीद रखें। गॉड डिजर्व्स द बेस्ट। अगर आप बाइबल पढ़े तो मूसा की ट्रेनिंग खुदा ने फिरौन के महल में करी और वो अगला फिरौन बनने वाला था। नहमिया कप बेरर था पर्शिया के राजा का। अगर आप अपना बेस्ट देते हैं खुदा को, तो खुदा भी अपना बेस्ट आपको देता है। If you give your best to the Lord, He will return His best to us. Colossians chapter 4 verse 14 tells us that Luke was a doctor. He probably practiced medicine in Malta. Acts chapter 28 verse 9. मगर जब खुदा ने उसको बुलाया तो अपना करियर छोड़कर कलाम की मनादी के लिए आ गया और पौलुस रसूल को उसने सपोर्ट करा। पहली आयत हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि खुदा यीशु मसीह 72 को भेज रहा है। ये जो 70 और 72, यहाँ पर थोड़ा सा जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, बाइबल ट्रांसलेटर्स हैं, इनके बीच में थोड़ा सा मतभेद है। पर ज़्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद 70 था, क्योंकि जो उत्पत्ति 10 में जहाँ मुल्कों की गिनती है पूरे दुनिया में करीबन 70 मुल्क थे। तो यानी कि जो 70 लोग खुदावंद यीशु मसीह भेज रहा है, वो इस बात को दिखा रहे हैं कि खुदा का कलाम पूरी दुनिया के लिए है। और क्योंकि मिशन बड़ा है, इसलिए खुदावंद कह रहा है कि तुम और भी मजदूरों के लिए
दुआ करो कि खुदा और मजदूर दे। Though Jesus is opening a new front by sending his disciples to the unreached, but this mission is rooted in the Old Testament law. Sending them 2 by 2 fulfills the OT requirement of 2 witnesses, Deuteronomy chapter 17 verse 6 and 19 verse 15. व्यवस्था विवरण में लिखा है कि 2 लोगों की गवाही काफी थी सच को बयां करने के लिए। इस बात का मतलब है कि जब हम कलाम के लिए आगे सुनाने के लिए जाते हैं, खुदा की खिदमत के लिए आगे जाते हैं, हमें कलाम में अपनी जड़ें बनाकर रखना है। और जैसे यहोशू 1 उसका 7वीं आयत के अंदर लिखा है, तू कलाम से ना तो दाएं और ना बाएं मुड़ियो। The verse 2, harvest is plentiful but the laborers are few. दुआ इसलिए करनी है क्योंकि there is a world waiting to be born. आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के काम के लिए आगे आए। एक बार खुदा यीशु मसीह मत्ती 9:38 के अंदर, मैथ्यू 9:38, खुदा यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोता है क्योंकि वो उस भीड़ की मानिंद है जिसके पास कोई चरवाहा नहीं है। खुदा के लोगों के पास ये पर्सनल टच होना बहुत जरूरी है सेवकाई में। और साथ ही साथ एक और बात जो हमें देखने को मिल रही है, खुदा कह रहा है और लोगों के लिए प्रार्थना करो कि और भी लोग आए। इसका मतलब है कि वी हैव टू राइज अबव द मेंटालिटी ऑफ डिनोमिनेशनल क्रिश्चियनिटी एंड रिस्पेक्ट अदर मिनिस्टर्स व्हाइल प्रेइंग फॉर मोर। फॉर गॉड, for only God sends his minister. Verse 3 makes the call of a minister absolutely clear. It says, I am sending you. A servant of God is ordained and appointed by God. It is God who chooses and it is God who ought to choose. खुदा यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 15:16 के अंदर कहता है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना है और तुमको मुकर्रर करा है ताकि तुम जाओ और फल लेकर आओ, ऐसे फल जो अबद तक रहें। God ordains and sends his people to bear fruits. Ministers must fear God and make every effort to work hard and yield fruits. Lazy people do not have any role in the ministry of God. Again in verse 3 we find Jesus is very genuine when he calls his people. खुदा यीशु मसीह साफ तौर से कह रहा है, warn the disciples the dangers of ministry. I am sending you like lambs among the wolves. भेड़ियों के बीच में मेमनों के मानिंद भेज रहा हूं। Now this is very interesting. Wolves have the following peculiar qualities. Wolves have the courage to stand. They are ferocious creatures. और ये आपको जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते, आपको मार भी सकते हैं भेड़िए। Wolves have strongly determined nature. आसान नहीं है उनके दिशा को बदलना। Wolf is an incredible leader. आप उनके चेलों को उनसे छुड़ा नहीं सकते। उनके जो पीछे चल रहे हैं उनको वो बहुत मजबूती और समझदारी से उनकी हिफाजत करते हैं। Wolves are equivalent to freedom. ये जंगली जानवर हैं, इनको लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है। Wolves won't show you mercy. यूहन्ना के अलावा बाकी सारे जो शागिर्द थे बहुत बुरी तरह से मार दिए गए थे। The wolves enjoy in the dark of night. उनके काम गंदे हैं, अंधकार में वो काम करते हैं और हमला तब करते हैं जब आपको उम्मीद भी नहीं होती। Darkness represents the kingdom of Satan. And seventh thing, wolves are among the world's most smartest and most perspective mammal. आसान नहीं है इनके बीच में काम करना। While dealing with such people, खुदा के लोगों को मेमनों के मानिंद रहना है। यशायाह नबी की किताब आइज़ाया chapter 42 verse 2, it says he will not shout or cry or raise his voice in the streets.
The statement is reiterated in Matthew chapter 12 verse 19. Even if the world loses its standards, ministers of God never lose their flavor. While ministering, his people represent the lamb that was slain. खुदावन की खिदमत आसान नहीं है अजीजों. It calls for challenges and Christ has already warned us. God chooses his people. He wants them to trust God through the challenges of ministry and work hard in his vineyard. However, when he chooses us, he creates support, provides our needs and stands with us. और इसी के साथ दूसरे नुक्ते पर पहुंचते हैं. God makes provisions for his ministers. खुदावन अपने खादिमों की जरूरतों का ख्याल रखता है. लूका की इंजील chapter 10 verses 4a and 7 and 8. In 4a, Jesus told them to carry no money bag, no knapsack. 2 जोड़े जूती भी मत लेना और किसी को सलाम मत करना रास्ते में. जब हमें खुदा सेवकाई के लिए बुलाता है, कई बार हम सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, अपनी जिंदगी को कैसे चलाएंगे. कलाम कहता है जो हल पर हाथ रखने के बाद पीछे मुड़ के देखता है वो आसमानी बादशाहत के लायक नहीं है. After all, ministry of God is selfless service, though benefits are out of this world. जिस इंसान की नजरें ही अपनी कमी घटी पर लगी हुई है, वो हर वक्त कुड़कुड़ाता रहेगा और उसके पास शिकायतों के अलावा कुछ नहीं होगा. खुदावन यीशु मसीह उनको he was sending them to preach the message of faith and dependency on Christ. The message could best be revealed through their lives. इन सब चीजों के बारे में चिंता करना would be cumbersome, taking away precious time that should have been spent in ministry. Moreover, दूसरे लोग भी ऐसे सोच से, ऐसे सेवकों को देखकर डिस्करेज हो सकते हैं जो कि खुदा की रहमत पर भरोसा ना करें. They were to become a living picture of dependency on God that God wants from every believer. Moreover, worldly positions usually pull a person away from God and makes it difficult for him to serve the Most High. However, जब आप खुदावन की बुलाहट को ले लेते हैं तो आप खुदावन की जिम्मेदारी बन जाते हैं. आपको याद होगा किस तरह से खुदावन मन्ना जंगल में खिला रहा था और एलिया को कौवों के जरिए कैसे खुदावन ने मीट की बोटियां खिलाई थी. In verses 7 and 8, Christ involves believers in the ministry of his servants. किस तरह से कलीसिया खुदा के खादिमों के साथ जुड़कर उनकी सेवकाई का हिस्सा बन सकती है. Every believer is a servant of God. मगर जो खास काम के लिए मखसूस कर दिया गया है, कलाम में लिखा हुआ है कि लेवी और याजकों की एक खास सेवकाई थी जिसके लिए वो मखसूस कर दिए गए थे और बाकी इजराइल के लोग उनकी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए थे. वो अपनी दहकी देकर, दशवांश टाइथ देकर उनकी जरूरतों का ख्याल करते थे. The same way ministers of God should be taken care by believers. Everyone cannot become a preacher or a teacher. You may share in the ministry in the ministry by supporting a minister. खुदावंद के योजना की खूबसूरती ये है कि आप उसके प्लान का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे आप छोटा से भी काम क्यों ना करें. मरकुस 9:41 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर कोई एक ठंडे पानी का कटोरा भी तुमको पिलाता है तो वो भी लिख लिया गया है और उसको, उस शख्स को उस बात का इनाम मिलेगा. Everyone has or his or her own limitations. Get involved where you can. Believe me, it's a blessed thing to be involved in the ministry of the Most High. At the same time, servants of God must be happy and thankful with whatever they are provided. God knows our needs best and provides the best for us. Ministers of God are the messengers of peace.
An unsatisfied appetite will only breed discontent and unrest. Satisfaction is something that comes from within and not from without. संतुष्टि अंदर से आती है, बाहर से नहीं. जीसस टोल्ड देम कि अपने साथ कुछ भी मत लेकर जाना, मगर एक चीज लेकर जानी है. वो क्या है? खुदावन की तसल्ली, खुदावन का इत्मीनान. बिकॉज गॉड वुड प्रोवाइड देयर नीड्स एंड दे आर टू एक्सटेंड हिज लव एंड पीस टू द बिलीवर्स. चौथी आयत के अंदर खुदावन यीशु मसीह कह रहा है कि किसी को रास्ते पर सलाम भी ना करना. Greetings in the ancient Near East was not like what we do today. दूसरे राजा 4:29 के अंदर जब एलीशा को भेजता है कि एक लड़के को जाकर जिंदा करना है, तो कहता है तो रास्ते में किसी को सलाम ना करना. बिकॉज दीज ग्रीटिंग्स वर, ये लंबे ग्रीटिंग्स होते थे, इनमें समय लग जाता, कई कई दिन लग जाते थे. The idea is to show the urgency of the mission of God. Ministers of God must not waste time in the affairs of the world. Their mission is focused upon another world which is eternal and everlasting, and into which they will eventually enter. Urgency in the mission of God is evident from John 9:4. जब खुदा यीशु मसीह कहता है कि दिन ही दिन में काम कर लो, क्योंकि वो रात आने वाली है कि कोई काम नहीं करेगा. शैतान बहुत बड़ी ही चालाकी से काम करता है कि हमें दुनियावी बातों में फंसा देता है और हम खुदा के काम से दूर हट जाते हैं. There is an urgency to preach his message of peace rather than getting involved in the useless talks and engagements of this world and waste time. With this, we reach the final point of the sermon. God's ministers are the messengers of peace. आखिरी नुक्ता, खुदावन के खादिम एक शांति के पैगंबर हैं. लूका 10 verses 5 to 6 and 9. शांति के राजकुमार के पीछे चलने वाले लोग, they should be the harbingers of peace of God. This is the beauty of Christ. कि खुदावन यीशु मसीह हमको कोई डेलीगेटेड टास्क नहीं देता, वो वही मिशन देता है जिस मिशन के लिए खुदावन यीशु मसीह खुद आया था इस दुनिया में. Not only that, वो हमको रूह भी वही देता है जो रूह खुदावन यीशु मसीह के अंदर और उसके जरिए काम कर रहा था. At Christ's birth, the angel sang an anthem of praise, singing, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests." Luke 2:14. Peace on earth, दुनिया में शांति, इत्मीनान. God was at last in the world, reconciling it to himself. The hearts of his creatures were coming back to him. Their allegiance was to be restored. Their wills were to be subjugated. Their minds to be enlightened. Thus, peace over all the world would be established. खुदावन का कहर हट जाएगा और इंसान और शैतान के बीच जो जद्दोजहद है वो खत्म हो जाएगी. क्योंकि जब when men are really at peace with God, they will come to peace with each other. The Lord Jesus Christ commissioned the disciples to pronounce that peace upon the people so that their hearts become conducive to the gospel of Christ. When we find someone not open to the gospel or to the plan of God, we become defensive and start despising. कलीसिया के लिए बुलाहट है कि वो अमन शांति के लिए दुआ करे लोगों के लिए और मेहनत करे
ताकि लोगों के बीच में, कलीसिया में शांति हो, लोग एक दूसरे के साथ इत्मीनान से रहें। मत्ती 10:5 के अंदर हम देखते हैं जब खुदा यीशु मसीह 12 शागिर्दों को भेजता है कि जाकर कलाम का प्रचार करो और मनादी करो आसमानी बादशाहत की। And in verse 12 and 13, Jesus commanded them to pronounce the peace upon the house they enter. अगर वो घराना शांति के लायक है तो तसल्ली खुदा की तरफ से उनके ऊपर ठहरेगी, नहीं तो खुदा के खादिम के पास वापस चली जाएगी। जो 12 शागिर्दों को खुदावन ने मत्ती की इंजील 10वें बाब में मैंडेट दिया था, वही कमांड 70 लोगों को मिली है। The 12 were sent officially to the house of Israel, while the 70 represents the gospel being preached to the world. The message, blessings and judgment to the world are the same as that on Israel. खुदावन भेदभाव नहीं करता, सबको बराबरी से देखता है। जब खुदा के लोग कलाम सुनाने जाएं, उसकी खिदमत करने जाएं, तो उनको भी बराबरी से काम करना है, पक्षपात नहीं करना। In verse 6, the Lord Jesus Christ commanded the disciples to pronounce peace, but it would rest only on the one who would promote peace. खुदावन के खादिम के लिए यह हुक्म है कि वो हर किसी को बरकत ही दे, चाहे सामने वाला बरकत का लायक है या नहीं है, यह खुदा तय करेगा किसको बरकत मिलेगी। हमारा काम सिर्फ बरकत देना है। खुदा के खादिमों के दिल से, उनकी जबान से गलत बातें नहीं निकलनी चाहिए, कहर नहीं निकलने चाहिए। Verse 9 commands the disciples to heal the sick and to tell them that the kingdom of God has come near them. खुदावन की तरफ से चंगाई और मुआवजे कोई शो ऑफ करने की चीज नहीं है। Miracles reveal the glory of God. A believer must not help just for the sake of helping, but must help for the glory of God to be revealed. हम जब किसी की मदद करें, कोई मुआवजे करें, कोई दुआ करें, कोई खिदमत करें, तो उसका एक मकसद होना चाहिए कि खुदावंद के नाम को जलाल मिले, वरना वो बेकार है। The Lord Jesus Christ equips His church to help the needy and to find the lost, so that God's name is glorified. People are reconciled to God and enter into His kingdom, the place for which they are originally designed. The messengers of God play a vital role in ministry. खुदावंद ने हमको बुलाया है कि हम जो पेरिश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनके लिए दुआ करें। Pronounce peace on the non-deserving and preach to the unreached, so that the kingdom of God expands. We are called to sow the seeds of His gospel in the hearts of people and demonstrate His grace through our lives. Other believers may join this ministry by their support to the missionaries. Those who are called in His grace are protected by Him amidst the severest of persecution. हमें चिंता नहीं करनी कि हमारी ज़रूरतों का क्या होगा। अगर हम अपने काम के लिए ईमानदार हैं तो खुदावन भी अपने वायदे पर वफादार है। We have to set our eyes on the Lord Jesus Christ and let Him work in and through our lives. आइए हम दुआ करें। खुदावन आपका कलाम हमें ज़िंदगी देता है, और पाक कलाम के ज़रिए हमने देखा कि जब आप अपने लोगों को बुलाते हैं, उनके लिए इंतज़ाम भी करते हैं। और कलीसिया के लिए भी एक ख़ास मौका है कि खुदा के खादिम के साथ मिलकर खुदावन की खिदमत करें। आए बाप इनायत करें अपना पाक रूह, ताकि आपकी कलीसिया के अंदर ऐसा रूह हो कि हम मिलकर खुदावन की खिदमत करें, खुशी खुशी करें, और आए बाप आपका इत्मीनान दुनिया तक पहुंचा सकें। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। Having heard the word of God, let us now affirm our faith by
reciting the Nicene Creed. खुदा का कलाम सुनने के बाद हम अपने ईमान का इजहार करेंगे। हम मिलकर निकाया का अकीदा दोहराएंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वो स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है। वो पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वो नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम खास प्रार्थना में जाएंगे। Let us pray. Lord, we come to your presence with our hearts full of gratitude and praise for all the blessings on us and for your wonderful and mighty things that you have done in our lives. Thank you, Lord, for the assurance that no matter how big or small the challenge may be, you never leave us or forsake us. In this time of the pandemic, we pray for the safety and protection of us all. Be with us, dear Lord, as we perform our duties. Grant us the spirit of love and self-discipline, that we may come together and do our bit to control the spread of the disease. For those afflicted with the disease, we ask for your healing hand. Give them full faith in you and the physical strength and endurance to come out unharmed. We pray specially for all those in public health services and the medical profession, caregivers, nurses, attendants, doctors, all those who commit themselves to caring for the sick and their families. We also pray for the law enforcing agencies, the government agencies, heads of states, so that they may carry out their duties faithfully. We commit those who are engaged in research so that they may discover a vaccine to fight this terrible virus. Lord, bless the work of their hands and minds. We pray for those who have lost their jobs or are in fear of losing their jobs. Meet their needs, dear Lord, and be with them in this time of crisis. We pray for all those who are working from home, especially for teachers and also students, as they face the challenges of online teaching. We pray for all the women, that your hand of care and protection be on them. We also pray, dear Lord, for our country and the unrest at the Indo-China border. Let your peace and harmony prevail. We commit each of us into your care. May we always bring glory to your name through everything that we do.
We ask this in the loving and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. कुछ बर्थडेज हैं इस हफ्ते, मेहरबानी से नोट करें। 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर मिस्टर जोशुआ मुथुमनी, मास्टर शेन रैमसे। 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर मिस्टर अपूर्व रॉय। 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर मिसेस राजमनी मिन्स, मिसेस रीटा सोनू, मिसेस मारिया गार्डनर and Mr. Andrew Gardner। 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर मिस अंजलि मसीह। 22 अक्टूबर 20 अक्टूबर 22 अक्टूबर मिस आशा सिंघा। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर मिस्टर सुरेश टोपो। Let us pray for those celebrating their birthdays this week. I, कमाल कुदूस रहीम करीम खुदावंद कादर मुतलक खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, from everlasting to everlasting you are the Lord. Father, we thank you for this blessed time to come before your throne of mercy, and thank you for your grace upon the life of your children who are celebrating their birthdays this week. We thank you, Lord, for your guidance, your presence with them throughout the past year, and even as they have stepped into one more year of your grace. खुदावन, हम चाहते हैं इस साल में भी आपकी बरकतें उनके साथ बनी रहें, उन्हें ईमान में मजबूत रखें, उनके करियर पर, जिंदगी पर बरकतें हों, उनके परिवारों को, कलीसिया को और समाज को भी उनके जरिए आप बरकतें पहुंचाएं। ये इनायत करें अपने बेटे हमारे दरमियान और फिदिया देने वाले खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। वेडिंग एनिवर्सरीज की लिस्ट है। 20 यानी 20 अक्टूबर मिसेस एंड मिस्टर यूजीन डैनियल एंड मिसेस एंड डॉक्टर IK मसीह। 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर मिसेस एंड मिस्टर PP नायक एंड मिसेस एंड मिस्टर रोहित रॉय। 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर Mrs. and Mr. VKM Cecil. Let us pray for those who are celebrating their wedding anniversaries this week. आइए हम दुआ करें। खुदावन, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं कि आप अजीम बादशाह हैं और बाग अदन में ही आपने निकाह को मुकर्रर और मकसूद मसह किया। आए खुदावन, आपके जो बच्चे इस हफ्ते अपने निकाह की सालगिरह मना रहे हैं, हम निहायत शुक्रगुजार हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर योर blessings and mercies upon their lives, on their relations last year, and even as they have stepped into one more year of togetherness in your grace. Lord, we seek your presence, your spirit, and your understanding with them so that they may accept each other, they may understand and grow in their love that comes from you. प्यारे खुदावन, उनके रिश्ते को मजबूत करें, उनके औलादों को बरकतें दे, उनके परिवार पर आपका हाथ बना रहे। आए खुदावन, आपके परिवार के जरिए और भी लोग बरकतें पा सकें। ये इनायत करें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए।
जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है हमारे पास रोज की रोटी हमारी, आज तो हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। वह हमारे पास जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह तो हमारे अपराधों को माफ कर दे। है हमारे पास हमें आज़माइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला। है हमारे पास क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत सर्रो ज़मीं का जलाल है, हमेशा तेरा रहेगा, हमेशा तेरा। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। एंड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑलमाइटी द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट बी अमंग यू एंड रिमेन विद यू ऑलवेज। आमीन।
आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो।